میری نظر سے دیکھے تو وہ گمراہ ہوا ہے. یہ چیز آگے یہ بڑھیں. چیز اب دیکھیں، اب پڑھیں یہ اسٹیٹمنٹ: تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے. کیا یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح؟ بھائی تسلیم کے بعد تحقیق، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا اور ایمان جو ہے پختہ ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں. اس میں تو کون سی کوئی برائی ہے ہی نہیں. بہت اعلیٰ. تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہو کہ کچھ لوگ جب تحقیق کرتے ہیں تو اور پختہ ہو جاتے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہو؟ صحیح ہے. کچھ تحقیق اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کو بتاتا ہے، ایسے کو وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ جس سے اس کا اور بھی ایمان جو ہوتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بعض ٹائم ایسے کہ وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے، وہ چلے بھی جاتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھو محمد احمد بھائی، اسلام جو ہے نا، میں مانتا ہوں کہ اسلام سچا ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی ہندو کو یا کسی عیسائی کو پوچھو کہ وہ نہیں مانے گا. ٹھیک ہے. تو جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، جنہوں نے تحقیق کی ہے، جو آئے ہیں، ایسے بھی ہیں لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے ہیں. ہاں، صحیح ہے. تو چلیں خیر دوسرے کوئی بھائیوں کو بھی موقع دیتے ہیں، ان ایسے بھی ان سے. بدبخت ہیں، کوئی ایسے بھی بدبخت ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا ہے. ہاں، وہ تو انہوں نے تحقیق کی نا، تو پھر ہی گمراہ ہوئے نا. تو دوسرے بھائیوں کو بھی موقع دیتے ہیں، اسے اسلام دعا کرتے ہیں. ہارون بھائی، دادا صاحب اور علی احمد بھائی، السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے محمد بھائی؟ الحمدللہ باقی الحمدللہ، صاحب دوست بھی ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. علی بنے احمد ہوئے بھائی، ہیں آپ تو کا کبھی کیا حال ہے؟ زندہ بڑھتے ہاں ہیں. صاحب منہ جی پہچان لیا وعلیکم جی. السلام، میں ٹھیک ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، نام بدلتے رہتے ہیں لوگ. ہاں جی. علی احمد بھائی، آج کا ہم نے دیکھا تھا کہ تسلیم کرنے کے بعد انسان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. ہم نے عموماً دیکھا کہ تسلیم کرنے کے بعد کی تحقیق انسان کو گمراہ کرتی یہ بات صحیح ہے نا. ہے. تو اکثر یہی دیکھا گیا ہے. بالکل. اور ہم نے دو ایگزامپلز لی، ایک جنرل لی، ایک اسپیسیفک لی. اور اس اسپیسیفک ایگزامپل میں پتہ چلا کہ واقعی میں تسلیم کرنے کے بعد جب تحقیق کی گئی تو وہ گمراہ ہو گئے. محمد خان صاحب نے بتایا کہ وہ بالکل حق پہ ہیں اور اس لیے وہ تحقیق نہیں کرتے، مگر ایک شخص حق پہ تھا، تھنک لائک منل ہے، انہوں نے تحقیق کی تو اب وہ گمراہ ہے ماشاء اللہ سے. گمراہ بالکل. اور کئی تحقیق کر کے محمد احمد بھائی، ہم تو کہتے ہیں اگر اس نے کوئی تحقیق کی ہے، جو چیز دیکھی ہے، ہمیں بھی بتا دے یار. ہاں ضرور اس میں پوچھ کون سکتے ہیں سی آپ، غلط بات ہے؟ جب آپ کی ملاقات ہو تو آپ ہاں تو ضرور ان سے پوچھ سکتے پوچھو. ہیں. وہ تو وہ کیا کہتے ہیں پنجابی چ، وہ تو سارا کچھ چھڈ کے دوڑ جاتا ہے. اور کئی تحقیق کر کے ناجی فرقہ میں آ جاتے ہیں. ہاں جی. تو وہ اپنے فرقے کے حساب سے گمراہ ہوتے ہیں نا. اب یہ جتنے بھی احمدی ہوئے ہیں تو تحقیق کے بعد ہی گمراہ ہوئے نا، مگر ان کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے حق پا لیا، مگر ان کے پچھلے رشتہ داروں کو، پچھلے مذہب والوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ زندیق ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور یہ پتہ نہیں کہ ان کو رہنے نہیں چاہیے دنیا پہ. بالکل. یہ نیچے وہ ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب، وہ اپنے زوم میں آخری عقل مند دنیا پہ موجود ہے، ان کا یہی خیال ہے کہ یہ سب گمراہ ہیں. احمدی جو ہے نا، وہی صرف حق پہ دنیا میں پھر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، ڈاکٹر ڈیرنگ صاحب تو اوپن ہے. انہوں نے کل پرسوں کچھ کہہ رہے تھے کہ میں اوپن ہوں، اگر مجھے کوئی تبلیغ کرنا چاہے میں تبلیغ بھی سننے کے لیے تیار ہوں، اور اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو میں تحقیق کرنے کے لیے اس کے تیار ہوں. جیسے وہ کہیں میں ان کے ساتھ ویسے چلنے کے لیے تیار ہوں. کسی موضوع پہ اگر میرے ساتھ تحقیقی مقابلہ کرنا ہے، بات کرنی ہے، موضوع بتائیں اور میرے ساتھ ڈسکس کر لیں. بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. یہ ضرور جی، جس کی خواہش ہو وہ جا کے کرے. یا وہ تو اوپن ہے، وہ تو کہہ رہے میرے ساتھ آئیں، بات کرے کوئی ہاں جی. کسی بھی موضوع پہ. ہاں. لیکن راجی فرقہ کو اسپیشل وہ دعوت دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں انہیں مدعو کرتا ہوں آئیں، میری براڈ پہ تشریف لائیں یا اپنے پاس بلا لیں. بہت وہ اعلیٰ. تو اکثر اوپن کا انہوں نے کل پرسوں میں ان کا سن رہا تھا، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی کوئی مناظرے کے لیے ریڈی ہیں؟ ان کا میں تو اوپن ہوں، میرے ساتھ جس نے بھی مناظرہ کرنا ہو کسی بھی موضوع پہ میرے ساتھ رکھ لیں. ہم ہی علماء کریں گے، علماء ڈاکٹر صاحب اس لحاظ سے کافی اوپن ہے.
उलमा करेंगे। और और डॉक्टर आज साहब आज तो आजकल माशाल्लाह जो दूसरे हमारे हैं ना राना साहब, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं तबलीग के मैदान में, अकल और खिरत के मैदान में। वो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला इस महाज पे उतरेंगे और बहुत जल्द। और डॉक्टर साहब जो है वो दूसरे फिरके की किताबें पढ़ने में भी आर नहीं महसूस करते। उन्होंने इनके मजहब और इनके फिरके की किताब तज़किरा की तिलावत की है, जो कि बड़ी मशहूर हुई है, हाँ जी ऐसे ही है। लोगों ने बड़ी पसंद की है। पहला यूनिक तिलावत का उन्होंने मतलब मिसाल वो पेश की है, बिल्कुल बिल्कुल एक रवायत पेश की है, या मिसाल कहना चाहिए। बिल्कुल। और ये दुनिया की वाहद ऐसी किताब है कि जिसको इस मज़हब के मुखालिफ ये पढ़ने पे बहुत उन्होंने एंजॉय किया है, और जो जिनकी किताब है वो बुरा मना रहे हैं। है की हरकत हुई। वो बुरा नहीं, डॉक्टर साहब ने की वो जो तिलावत इन्होंने की है वो बड़ी मशहूर हुई है, हाँ जी। बड़ी उसकी डिमांड है, लोग सुनना पसंद करते हैं। वाहिद यूनिक तरीका इन्होंने बताया पढ़ने का। ये तो ना कहीं यहाँ पे बैठा कोई बंदा नहीं पसंद करता सिवाय दादा साहब के, और कोई नहीं पसंद अच्छा, करता। बुलाएं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर डेरिंग साहब को ले लें थोड़ी देर के लिए माफी जरा। दे रहे हो, क्यों पीसफुल माहौल खराब करना है। नहीं नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, टिकटॉक है, वो अपनी जगह बैठे हुए हैं, वो आपको कोई पत्थर नहीं मार रहे। उनकी बात सुनने या उनसे बात करने में कोई हर्ज तो नहीं है। साहब ये जरा जो अली अहमद साहब हैं, ये अपना कोई अकीदा शीदा बताएंगे, ये है कौन? क्यों हाँ बताएं, जी, ये मेरा आपको नाम अली बताएंगे, आपको अहमद है। क्यों बताएं। मेरा नाम अली अहमद है। मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हूँ, मुसलमान हूँ। हाँ जी। और सुन्नत को मानता हूँ, ईसा हदीस अलैहिस्सलाम की को छोड़ के मानता हूँ। तरफ, और ईसा ईसा अलैहिस्सलाम की अलैहिस्सलाम, बहुत सी मान। ईसा अलैहिस्सलाम को अगर आप ईसा फौत कहते हैं तो मैं फौत मान लेता हूँ। बहुत बताएं, गलत। अच्छा अच्छा। आपका क्या अकीदा भाई? नहीं नहीं, सही है, बिल्कुल सही है भाईजान, मेरा भी वही अकीदा जो आपका है। अच्छा, आपका भी यही है। तो आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से मुसलमान? कौन से मुसलमान। वही जो आम इंसान, मुसलमान होने के लिए क्या चीज चाहिए? किस फिरके से ताल्लुक रखते हैं आप? नहीं, आप अपना बताते हुए आपको शर्म आ रही है, मेरा आपसे पूछ रहे हैं, ना पूछे फिर मेरा भी, मैंने तो अगर आपने आपको नहीं बता बताया यार। दिया सारा, और आपने नहीं, कहा आप मेरा भी वही है, अपना तो फिर अब अपने आपको को क्यों शर्म? शर्म आ रही है? अपना हाँ अपना जी। बताते हुए क्यों शर्म आ रही है? अपना बताते हुए क्यों शर्म आ रही है? यार मेरे भाई, मैंने जो अपना ये बताया तो है, और आप आपने ये कहा। तो आप ऐसे कर रहे हैं कि एक उंगली मेरी तरफ कर रहे हैं, चार आपकी तरफ भी हैं। मैं मेरे भाई क्या ये कह रहा अपना हूँ कि बताते हुए शर्म आ रही है? नहीं, अपना बताते मैंने, हुए क्यों शर्म आ रही है? यार ठहर, चले मैं अभी आपने, सतीश भाई को बताऊंगा यार, ठहरो, मैं अभी फोन करता हूँ सतीश भाई को। सतीश भाई नहीं आते हैं चलो यार, आप। मोहम्मद अहमद आपकी ब्रांड वो में। वो नहीं आते यहाँ पे, वो फाइटर के साथ रहते हैं या उनके अच्छा साथ रहते हैं अपने सफवान भाई के साथ। अच्छा अच्छा। तो आ जाए ना मोहम्मद अहमद भाई, कभी सफवान की ब्रांड पे भी आ जा करें। क्या हाँ, मसला वहाँ है पे तो भाईजान? मैं आ ही जाता था, क्या पर उधर दाल निकलता वहाँ है? पे सफियान भाई माशाल्लाह बड़ा अच्छा दरस हदीस देते हैं, और वहाँ पे सफियान भाई को ही बोलना चाहिए। और मैं कभी कभी नीचे बैठ के सुन लेता हूँ, हम्म, मेरा वहाँ पे क्या काम है। हम्म। वो नहीं तो नहीं, दरस ये अली हदीस अहमद देते की हैं, बात और कर रहे वो हैं। दरस हदीस देते हैं, वो दरस हदीस उनका जारी रहता है और बड़ा अच्छा चलता है उनका दरस हदीस। ज़ईफ़ हदीस पढ़ते रहते हो? कौन सी। ज़ईफ़ हदीस? नहीं नहीं, ज़ईफ है सही दोनों पढ़ते हैं। ये हदीस का ज़ख़ीरा है, ज़ईफ भी जब मौजूद है तो नहीं, पढ़ने ज़ईफ़ तो होता नहीं पढ़नी चाहिए ना, जिसको है। क्यों। उनके फिरका ने एक्सेप्ट नहीं किया उन हदीस को, मसलन। जो मसलन जो कुरान के खिलाफ है। नहीं नहीं, बहुत सी हदीसें बेकर ज़ईफ भी हैं, मगर बिल्कुल ऐन कुरान के मुताबिक हैं। हाँ, तो जो कुरान के खिलाफ है वो क्यों पढ़ते हैं, मैं ये कह रहा हूँ। भाई मौजूद है ना, अब सामने पढ़
ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਿਆ। ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਛੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪੜਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋ ਪੜੇਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਫਹੂਮ ਬਹੁਤ। There's no third time period, so he didn't get life again and he won't return because Quran restricts it to 2 time periods. Then Allah says, "Wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida." Now he's only a witness on Qiyamah. Not only this, Allah says in the Quran regarding Isa alayhi salam's life cycle, "Wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu." पलू बना जो आपके दिलों पे उतरे। नहीं, तहकीक के बाद जब आप तस्लीम कर लेते हैं फिर तहकीक करना बंद कर देते हैं। अब वो तस्लीम हो गया तो अब तहकीक तो जारी रहेगी ना। अब तो ये यही बात तो भी मसला है, यही तो मसला है ना, तस्लीम के बाद तहकीक बंद हो गई ना। हाँ, तस्लीम के बाद तहकीक बंद नहीं करनी, लेकिन मसला फिर ये है कि फिर तस्लीम क्या करना। यही तो होस्ट का पैगाम है, वही तो यही तो सुनना चाह रहे हैं, यही तो पूछना चाह रहे हैं। नहीं यार ये मेरा टॉपिक नहीं होस्ट है। का क्या पैगाम है सर, वो होस्ट खुद ही आके बताएगा। फिलहाल आप लोग बात करें, होस्ट का क्या पैगाम है वो होस्ट आके बता देगा। होस्ट नहीं का यार ये पैगाम मेरा लिखा हुआ है। टॉपिक ही नहीं, आप लोग इस पे बात करें, मेरा ये टॉपिक ही नहीं, आप करें बात इस पे। नहीं, आपका क्या टॉपिक है? आपका क्या टॉपिक है? नहीं मैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वगैरह पे बात करता हूँ, साइंस के ऊपर बात करता हूँ। ये फिर इस तरह करें भाई, उस पे आप हमें बताएं बात, कोई अच्छी बात बताएं, हम सुनेंगे आपकी बात। चलिए मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव देता हूँ। मैं तो एक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड आपको पता चल गई है? बिल्कुल। तो बताएं हमें कहाँ खुदा एग्जिस्ट करता है। मैं अपना पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि मेरी नज़र में क्रिएटर जैसी कोई चीज़ नहीं, अल्लाह खुदा ये सब एक इंसानों की लिखी हुई चीज़ है और इनका हकीकत से कोई मुबनी नहीं है हकीकत पे ना। ये बस इंसान की, क्योंकि असल में किसी इंसान को कोई सर्टेनिटी से नहीं पता कि इस दुनिया के बाहर क्या है या कि गॉड हो सकता है, वो बस अपने ख़यालात के ज़रिए बता दिया उन्होंने। तो गॉड जैसी हमारे पास उसकी कोई डेटा सेट भी नहीं है इस यूनिवर्स पे जिसको हम एनालाइज भी कर सकें, तो फिर इसका होना या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस लिहाज से हम रिजेक्ट करते हैं कि गॉड भी कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करता है इस दुनिया के अंदर। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। कॉन्शियस क्या चीज़? कॉन्शियस और कॉन्शियसनेस में फ़र्क है। कॉन्शियसनेस पे तो नहीं मैं मानता। एक इंसान कॉन्शियस है क्योंकि उसका बॉडी मैकेनिज़्म ऐसे बना हुआ है कि उसको कॉन्शियस बना रहा है, उसका हार्ट बीट हो रहा है, उसका ब्रेन, ये सब मिलके एक इंसान को कॉन्शियस बना रहा है। क्या हर लिविंग ऑब्जेक्ट में कॉन्शियसनेस होती है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस नहीं मैं बोल रहा हूँ, कॉन्शियस होते हैं, कॉन्शियसनेस नहीं मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या हर लिविंग ऑब्जेक्ट कॉन्शियस होता है? जी, हर अपने लिहाज से कॉन्शियस होता है, मतलब जो उसका फंक्शन है उसके लिहाज से। कॉन्शियस कहाँ से आती है और कब जाती है? कॉन्शियस मैंने बोला है, ये जब पूरा बॉडी का मैकेनिज्म बनता है ना उसके लिहाज से, तो वो बॉडी का मैकेनिज्म, उसके न्यूरॉन्स, उसका ब्लड मूवमेंट, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, ये सारा मिलके उसको कॉन्शियस बनाती है। क्या हम कॉन्शियस को आउट ऑफ द स्क्रैच क्रिएट कर सकते हैं? क्या हम आउट ऑफ द मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा था आर्टिकल ना, उस पर बता रही थी कि उन्होंने ना 15 साल के बाद ना एक नॉन लिविंग थिंग को ना एक लिविंग थिंग में कन्वर्ट किया 15 साल के बाद ना। वो मैं आर्टिकल आपको शेयर भी कर दूंगा। वो आर्टिकल मैंने भी पढ़ा जा रही है, उसमें आउट ऑफ स्क्रैच नहीं है। उसमें क्या है, उन्होंने एक लिविंग ऑब्जेक्ट के सेल्स लेके एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो डेड है उसके अंदर इंजेक्ट किए हैं और उसको लिविंग बनाया है। दैट इज नॉट आउट ऑफ स्क्रैच। वो आर्टिकल 2-3 दफा रिवाइज भी हुआ है, उसका रिसेंट मेरे ख्याल में 2016 में है। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपने मेरा वाला आर्टिकल पढ़ा है, मैं वो देख के बताऊंगा। ओके, मे बी, बट आप दोबारा लेकिन पढ़ ये लीजिएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसी हमारी साइंसी और दुनियावी, क्योंकि हम तो अभी इतना कुछ नहीं जानते, टाइम के साथ वो हमें पता लगना शुरू हो जाएगा कि कैसा है। क्यों फिलहाल उसमें गॉड ऑफ द गैप्स लगाना बहुत गलत बात है कि उठा के गॉड ऑफ द गैप्स ना लगाएं। आई एम नॉट सेइंग कि आप गॉड ऑफ द गैप्स लगाएं, लेकिन अगर हमारे पास इस चीज़ का आंसर नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर हमारे पास भी है कि नहीं है, लेकिन आपके पास भी नहीं है। मसला ये है कि दोनों के पास आंसर नहीं है। लेकिन एक बंदा बोलता है कि मेरे पास सारी आंसर है, ये मुझे मसला लगता है ना, जब कोई बोलता है कि मुझे आंसर है मेरे पास। Good morning.
वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा एक ओपिनियन है, जब कभी आप कुरान को भी स्टडी करते हो, जब तक आप उसको अथॉरिटी नहीं ना मानते हो, सुपीरियर बीइंग का जो किताब नहीं मानते हो, तो फिर आप गुमराही हो। पहले सुपीरियर बीइंग सही है। को तो तस्लीम कर लें, उसके ऊपर तो तहकीक कर लें कि वो कहाँ है, क्या है, कैसे बोलता है, हमसे कैसे कम्युनिकेट करता है। बिल्कुल, एक तहकीक कुरान करना बहुत नहीं इम्पोर्टेंट चीज़ है। जी, तहकीक करना जरूरी है ना, लेकिन वंस यू से कि मैंने मान लिया देयर इज अ सुपीरियर बीइंग एंड देन यू से कुरान उसकी किताब है, फिर जब आप उसको अथॉरिटी नहीं ना मानते अपनी तब तक आप कुरान को आई डोंट थिंक अंडरस्टैंड कर सकते हो। मेरी तो अथॉरिटी ये मानना मतलब उसकी राय है। हकीकत से कितना डिफरेंट होता है। एक चीज हकीकत अलग होना चाहिए नहीं, और उसकी अथॉरिटी, अगर देखें, उसमें हकीकत ही नहीं मैं- तो मेरी बात authority सुने। कैसे? बात तो पूरी करने देना। नहीं तो फिर मैंने बोला आपने जब पहले एक माना ही नहीं बात ना, तो पहले पूरी करने देना। मैंने बोला जब पहले आप मानेंगे इफ देयर इज अ गॉड, कोई खुदा है, पहले आप ये मानेंगे मानेंगे। नहीं, जब assume आपने मान करेंगे, लिया है assumption खुदा, करेंगे। फिर आप अजूम कर रहे हैं ना, हम अजूम बिल्कुल इन्होंने सही बोला। अज्यूम क्यों करेंगे? आप देखो, मानेंगे तो आप उसे पहले जब वो लड़ो, हम आप अपने मानूंगा तब ना जब आप मुझे फैक्ट्स पेश नहीं करेंगे। अच्छा, मैं ये सवाल करता हूँ, ऑप्टिमिस्टोलॉजिकली आप इसको आप प्रूव ओके, करते एक बंदा बात नहीं कर सकता, लाइक व्हाई यू गाइस गेट इन सो इनसिक्योर? हैं। मैं तो हम एक बंदा दोनों बात बातें करे कर ना, रहे फिर थे, आप दूसरा दरमियान में कूदे। हमारी बात तो चल रही थी, मेरी और मज की बात चल रही थी। आप जो है इनसिक्योरिटी शो करके दरमियान में जंप हुए हैं। नहीं, आप में हमने आपको आप इन्वाइट में नहीं एक किया था ना। बिलीवर और एक नॉन बिलीवर है, कि आप दोनों नॉन ये बिलीवर हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया ना। आपने जंप इन किया है, हम दोनों की बात चल रही थी। आपने बगैर किसी एथिक्स आप के खुदा जंप को इन आप कर दिया। खुदा को ढूंढ रहे हो या किसको ढूंढ रहे हो? भाई मैं हकीकत को ढूंढ रहा हूँ, खुदा को नहीं। मैं हकीकत को, उसमें अगर खुदा भी आ जाए तो वेल एंड गुड। आप अच्छा, आउट ऑफ द ब्लू ऊपर अभी आके तक जंप इन आपको कर गए क्या हैं और लगता फिर आप है, हमें कह रहे हैं कि हम जो है एक बंदा बात करे। एक बंदा बोल लेना, नहीं, आपसे तो बात एक नहीं बंदा हो कर रही ले थी ना। बात, क्या आपसे इंटरनेशनल भाई, आपसे बात नहीं हो रही थी, मेरी और मुझ की बात हो रही थी। आपने जंप इन किया है और आप हम पे अब फोर्स कर रहे हैं कि एक बंदा बात करे। हम तो आपसे बात ही नहीं कर रहे। अच्छा चलो, दोनों दोनों हाँ, कर हम ले, दोनों दोनों कर रहे कर थे ले, बात, दोनों कर हमारी ले, बात पर खत्म ही एक नहीं वक्त हुई। पे एक बोले ना, ये नहीं, तो मेक सेंस करती है आपसे बात ही नहीं कर रहे ना हम। कि दोनों एक दफा। आपसे बात नहीं कर रहे थे ना हम तो आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। आपने जंप इन किया और आप हम पे फोर्स कर रहे हैं कि नहीं, हम जो है ये करें वो करें। आप लोग हम खुदा फोन को पे माने, कॉल ये कर लो माने। एक दूसरे को, जी, आप फोन पे एक दूसरे को कॉल कर लो ना, टिकटॉक पे आए ना। पर्सनल कॉल कर आपने लो। बात करनी, हम अपनी बारी का इंतजार कर लें। टिकटॉक पे भी तो लोग मेरी आएंगे, आवाज नहीं आएंगे? यार एक सेकंड इंटरनेशनल अब भाई, दो इंटरनेशनल भाई एक सेकंड यार। क्या ही बात करेंगे आपस में? ओ बॉडी साहब एक सेकंड रुक जाए यार, वो आपसे ये अर्ज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों भाई एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। पहले उनकी पूरी बात मुकम्मल होने दीजिए, फिर आप अंदर आके अपना पॉइंट रखिएगा। अभी तक उनकी बात दो मुकम्मल नॉन नहीं हुई। बिलीवर आपस में क्या? आप तशरीफ रखिए नीचे, चले आप बात जारी रखें। उनको नीचे, आप नीचे बैठ के सुने, आपको दोबारा ऊपर लेते हैं सर। बताओ यार, अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि नॉन बिलीवर आपस में क्या बातें करें। हमारा दिल चाह रहा है, आप आके हमें जबरदस्ती अपना खुदा मनवाओगे। जबरदस्ती कैसे मनवाओगे बताओ? अली अहमद भाई, जबरदस्ती कोई खुदा किसी को कोई मनवा सकता है? किसी कोई अपना खुदा नहीं मनवा सकता। हाँ जी, आप लोग बात जारी रखें। आप इंटरनेशनल बॉडी भाई, सॉरी यार, वो असल में थोड़ा खराब हो रहा था माहौल, मैंने कहा आप बैठे जरा। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। जी अली जी, आप बात जारी रखें सर। मुझ और क्या ना फ्लाइंग पे, जी कोई बात नहीं। अब जबरदस्ती नीचे से आके कह रहे कि आप उसमें फोन कर लो, मेरा खुदा मान लो। क्यों मान ले? पहले साबित तो कर दो अपना खुदा। दादाजी सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ्लाइंग साहब सुनाओ, तहकीक करवा रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। उसकी किस्मत अच्छी है कि दादाजी चुप रहे। जी जी, हाँ, बच के निकल गया वो। आज सही बात है। अस्सलाम वालेकुम। अली अल्लाह, अली वलीउल्लाह, अली हक, अली अल्लाह, अली अल्लाह, अली अल्लाह, अली हक। वलीउल्लाह, अली हक। फ्लाइंग या भाई, अली इनको मदद। खुद अपना खुदा मिला नहीं, किसी को कैसे मलवाएंगे? कि आगे बंदे पूरे हो गए ना। खुद खुदा मिला नहीं, दूसरे को मनवा लो, वो भी जबरदस्ती।
यार चलो दलील से मनवा लो भाई, हम हैं हाजिर हैं, मनवा लो दलील से। लकी है, लकी दादाजी देर से उठे नहीं तो हाँ, सही अभी बात। उसको हिसाब पूरा कर देना। नहीं यार, मैंने क्या करना था, आप लोगों ने पूरा कर दिया। ये शाह साहब आए हैं अब, जी जी जी, मोहम्मद शाहिद भट्ट साहब, शाहिद भट्ट साहब। हजरत शाहिद भट्ट रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शाहिद भट्ट रहमतुल्लाह। डेविड साहब ना किया करें, ना किया करें। जनाब आप तो हमारे लिए आला आला तरीन हजरत हैं। है जी, ये आपकी जिनसे बात मोहब्बत है हो रही थी जनाब, आप एग्जिस्टेंस पे जिनसे जी नॉन एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस पे जिनसे बात हो रही थी, चले गए वो? जी, वो चलेगा, वो कह रहा है मेरा इंटरनेट लैग कर रहा है, प्रॉब्लम है, मैं फिर आता हूँ। ओके ओके, नहीं अच्छे बंदे थे वो। हम यहाँ किसी से लड़ने के लिए थोड़ी बैठे, लड़ते हैं थोड़ी हैं कि जबरदस्ती मेरा खुदा मान लो या मेरा खुदा ना मानो। आप मान रहे हो, मान लो, आप मुझे कायल कर लो, नहीं कर सकते छोड़ दो, लीव इट। जी हजरत दाऊद साहब ते हजरत दादा साहब आपस में डिस्कशन करो ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ कह रहे हैं जी, ਸਾਡੇ ਚ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਡਿਸਕਸ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਚ ਦੇਣ ਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਦਾਦਾ? बिल्कुल तुसी क्रिएटर नहीं मानते, ਅਸੀਂ क्रिएटर नहीं मानते, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰੋ। ਪਰ ਦਾਦਾ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਡੇਵਿਡ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਮੰਨੋ, ਲੇਕਿਨ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ वैसे मेरा एक सवाल है कि क्रिएटर ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਬਤ ਦਲੀਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ये बड़ा जबरदस्त सवाल है। WhatsApp ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਡਾਲ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਦਾਦਾ? ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਾਵਾਂ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵਾਂ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ, ਆਦਮ, ਬਸ਼ਰ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਉਨਸੀਅਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਫਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਪੈਕੇਜ ਆਦਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। यार मैं आ गया वापस, वो भाई भी चले गए, क्यों भेज दिया आपने उनको? एक मुकाम बड़ा ज़बरदस्त आया था, एंजॉय करने वाला था, मुझे नहीं पता आप लोगों ने क्यों किया। कोई क्वेश्चन हुआ किसी भाई ने किया और भाई कहते हैं कि ये तो आप भी नहीं प्रूव कर सकते। इतना मजे का लम्हा था जिसको एंजॉय नहीं किया। जी बिल्कुल, बात ये सही है कि जिस खुदा अगर प्रूव हो गया तो वो खुदा कैसा खुदा कैसे होगा? ठीक है, तो किसी के खुदा को मानना नहीं चाहिए। ये जो मेरे लिखा हुआ है उसका मतलब सिंपल यही है, जिंदगी तहकीक पे गुजारो और नई गुमराही को एंजॉय करो, इसी में मजा है। क्या बात है, बिल्कुल, क्या ख्याल है? बिल्कुल, आई एग्री। क्या नई गुमराही को एंजॉय करो। अगर आप समझते हैं, दूसरे लोग समझते हैं कि आप अभी तक गुमराही में, तो एंजॉय करो, एंजॉय इट एंड आपका पूरा तहकीक को जारी रखो। मैं अभी हम मिसाल दे रहे थे कि एक भाई था, पिछले साल था, कि एक मकतबा फ़िक्र से जुड़ा हुआ था और उसने तहकीक की और वो उसी मकतबा फ़िक्र के लोगों के लिए वो गुमराह ठहराया। तो गुमराही बेसिकली इंसान खुद डिसाइड नहीं करता, लोग उसको गुमराह कह रहे होते हैं। कभी इंसान को देखा है कि वो कहे कभी मैं गुमराह हूँ, कोई भी नहीं गुमराह हो गया? कोई नहीं कहता, ये दूसरे हमेशा डिसाइड करते हैं। हमेशा इवन कुरान मजीद में हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला बता रहा है दूसरों को, तुम पहले गुमराह थे, तुम पहले ऐसे थे, मैं तुम्हें सीधा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ।
तो इस गुमराही को एंजॉय करना चाहिए, तहकीक जारी रखनी चाहिए, वाह। कुछ नया सीखते ही जो आपको मजा आएगा वो किसी और को नहीं आने वाला। नहीं आएगा। वो आया था वजदा का दालन फहदा, और हमने फहदा। तुम्हें दलालत में पाया, गुमराही में पाया, वाला दाली, यस। फिर फहदा, फिर हदायत दी। आहा। तो ये